The state of Jammu and Kashmir, its snow-covered mountains, its verdant green meadows, its waterfalls, rivers and lakes, the orchards, and the extraordinarily gifted people dancing with joy at their rich heritage. It's all as if God created Kashmir to correct the absence of a paradise on earth. From time immemorial, Kashmir soil has kept alive its dance and drama as a mother tends to her child. Engravings of dancers on the Harvan tiles clearly suggest that the tradition of dance in Kashmir flourished even in the pre-Christian era. It is because of this ancient heritage that Kashmir gave birth to the great luminaries who worked wonders in the progress of the art and culture of the entire subcontinent. The Nilmat Puran, the oldest remaining record of Kashmir's history, contains evidence proving the joy-loving and cheerful nature of Kashmir's people. Dance, drama and song has been a regular part of their lives. From sowing of the seed to the harvest, a number of festivals are celebrated. Dance and song are the lifeblood of the festivities. जम्मू कश्मीर रीजन में तीन मेजर रीजन्स हैं, जैसे जम्मू है, कश्मीर है और लद्दाख है। लद्दाख के अपने डांसेस हैं जिनका टोटल स्टाइल ही डिफरेंट है। जम्मू में सबसे पॉपुलर जो यहाँ का एथनिक डांस है वो है कुड। और कुड जो है वो हमारे जो जम्मू के जो हिली रीजन है, पहाड़ हैं यहाँ, उन पहाड़ों में किया जाता है। और इस डांस ये एक रिचुअल डांस है। पहाड़ी लोगों के जो देवता हैं, वो देवता को प्लीज करने के लिए देवता के साथ साथ देवता के जो स्थान होता है देवता का, उस स्थान के ऊपर डांस करते हैं। और वो एक पर्टिकुलर टाइम होता है, हार्वेस्टिंग का टाइम हुआ, जब ऐसा टाइम हुआ उस टाइम पे वो डांस किया जाता है। The Dogras of Jammu take great interest in song and dance. Love itself flows in their veins as they are extremely fond of cultural activity. Although a number of folk songs and dances of Punjab have gained popularity among the people, they have certainly not forgotten their own cultural wealth. Some people believe that the Kud dance belongs essentially to Badarva. However, the dance form is popular in all the hilly parts of Jammu. After sowing work is complete, the Kud dance is performed by farmers in their leisure time with full colour and festivity. The Kud dance is performed around a bonfire after dark. The eager audience gathers around the bonfire to watch the dance. Dressed in traditional Dogri costumes, the dance starts with the dancers moving slowly around the fire. मैंने तो कुछ मतलब फेस्टिवल्स खुद जाके बीच में पार्टिसिपेट किए हैं। उसमें इंटरेस्टिंग पार्ट ये है कि जो उनका देवता है, चाहे वो मतलब मान लीजिए, चाहे वो कुछ भी सिंबल समझ लीजिए, एक जगह तो ढोल देवता है, ढोल का देवता है, वो देवता जो है पूरा राउंड लेता है। यहाँ पे हमारे यहाँ जैसे आप देखते होंगे कि दशहरा की परंपरा है वहाँ पे कुल्लू में, उस तरह की कुछ ऐसी ट्रेडिशंस हमारे यहाँ वो दशहरा के साथ नहीं होती। जैसे वो देवताओं को लेकर के देवताओं की एक यात्रा जो है वो निकलती है, उस तरह की यात्रा भी होती है। और उस यात्रा के साथ साथ जो है डांस चलता है। एक देवता मान लीजिए इस पहाड़ के ऊपर है और दूसरा देवता वहाँ पे है, तो वहाँ के लोग जो हैं वहाँ से देवता लेकर के उसकी यात्रा करेंगे और दूसरे देवता से वो मिलने जाएगा। और वहाँ पे भी एक बहुत बड़ा फेस्टिवल होगा, वहाँ रात भर डांस चलता रहेगा। और हमारे यहाँ जो कुड की ट्रेडिशन है उसमें ये पहाड़ों में तो रात को शुरू होता है,
रात मतलब खाना-वाना जब सबको खिला दिया जाता है, सबको बुलाया जाता है, उनके लिए खाना बनाया जाता है, पूरे 10-20 गाँव मिलके इकट्ठा वो भोज होता है, उसके बाद शुरू होता है डांस और रात भर डांस चलेगा, सुबह जब सूरज मतलब चढ़ने तक और उसके बाद आप देखेंगे कि वो लोग जो है मतलब उस समय डिस्पर्स होते हैं। During the dance, flutes, drums, and the narsimhan are played. Watching the enthusiastic dancers dancing to catchy rhythms, one's own feet too start to dance to the tunes. इस तरह की और भी एक्शन मतलब डांसेस बहुत सारे हैं जम्मू में और एक फुमनिया है डांस, वो भी हमारा एथनिक और ट्रेडिशनल डांस है। हमारी स्टेट में खासकर जम्मू रीजन में पार्टिकुलरली उधमपुर में रियासी और रामनगर का एरिया आता है और इस तरफ डोडा भद्रवाह का जो इलाका है वहाँ पे काफ़ी डांस के ग्रुप्स हैं जो एथनिक ग्रुप्स हैं। In the Jammu region, the main dance of the ladies is Jagarna. This is not a public performance. Ladies do not accompany the barat in a boy's marriage. They do the Jagarna dance at home. Among themselves, the women talk about their marital life and discuss their husbands' attitudes. उस जागरणा में मर्दों को इसलिए अलाउड भी नहीं था कि उसमें कुछ बहुत सारी रिवीलिंग सिचुएशंस बनती थी, तो मतलब इस तरह का कुछ ऐसा है जो हमारा रिसर्च है उसमें ये हमें पता चलता है कि उसमें कुछ ऐसी बातें भी और मतलब रिवील करी गई हैं जो मेरे ख्याल में मर्दों के साथ शेयर करने वाली नहीं थी। In olden times, Kashmir was known as a land of temples and holy shrines, where on the one hand, temples were centers of religious activity, on the other, they were also the hub of refreshing cultural dance and music. An integral part of every temple was a female dancer along with a band of musicians. Every morning, the dancer performed to please the deity. Every village had a stage where dramatic performances were held. The most well-known artists of Kashmir have been Bhand, Damali, Laddi Shah and Tombori. They were all professionals, but without any special training besides that which they inherited from their family. The artist in them was inborn. It lived in their blood. To this day, Bhand remains a favorite of Kashmiri people. भांड कश्मीर के वैली के सभी अतराफ में फैले हुए हैं। मतलब वादी कश्मीर में जो भी कश्मीरी बोलने वाले इलाके हैं वहाँ उन सभी अतराफ में फैले हुए हैं भांड। तकरीबन 82 गांव ऐसे हैं जहाँ भांड लोग रहते हैं। भांड लोगों का रहा है, ये आजकल की ज़बान में कहे हैं, दे आर ट्रेडिशनल थिएटर वर्कर्स एंड द फोक डांसर्स एंड फोक ड्रामाटिस्ट। तो ये रहे हैं सदियों से। कश्मीर की तारीख जितनी पुरानी है, मतलब पंडित कलहन की राज तरंगनी से लेकर आज तक जितना भी इतिहास कश्मीर के बारे में लिखा जा चुका है, तो उन सभी इतिहासों में इसका जिक्र मिलता है। The performance of the people of Bhand was called Jashan. Jashan is made up of several parts called Pather. Bhand Pather or Jashan is the oral extempore drama without any formal script. An essential feature of every Pather is the joker, whose role it is to make the audience laugh. The dance has no female artists. The dance you are watching now is called the Bhand Chok.
भांड चौक को अगर हम कश्मीर के लोक थिएटर का चेहरा कहें तो कोई गलत बात नहीं है, क्योंकि जिस भी ज़ियारतगाह पर या दरगाह पर या मंदिर में या कोई अच्छी जगह हो जहाँ भी भांड लोग जाके करते हैं तो पहले शुरू आरंभ इसी से करते हैं। तो इसमें एक कहानी मशहूर है कश्मीर के भांडों में कि जब ये गोल दायरा बनाते हैं तो जिसका हाथ छूट जाता था मेले में तो वो आदमी उस साल मर जाता था। इसलिए लोग आज भी इस एक दूसरे को बड़े ज़ोर से थामे रखते हैं। तो ये शुरू होता था, शुभ आरंभ जैसे हिंदी में कहेंगे तो वो होता है भांड चौक। इसमें कश्मीरी रक्स के, कश्मीरी डांस के तकरीबन सभी रूप आते हैं। इसमें जो कश्मीर में हमारी सूफियाना मौसीकी में राइज ताले हैं वो सभी ताले हैं। हिजज है, दुरोय है, दुयका है, यक्का है, सताला है, चपंदाज है, नीमदौर है। जो हमने पहले शुरू किया उसको कहते हैं हम भ्रूण दर। तो उसके बाद हमने हाथों का वो एक्शन किया है, उसको कहते हैं गुलमोहर। हता हमद पर आंद्रायो शान वके आज साहिबो दीदार Another favorite dance of the Bhand folk is the Chakri or Bach Nagma. In the Bach Nagma, musicians and instrumentalists sit and play while a dancer gets up and performs. यार दोशुर बासुच नो वसनम तके यजपान आशिमो गुनशीर हता बोझ लगियो आवलोया ये बजनगमा तो माले में होता है और शादी में होता है, हर किसी जगह होता है बजनगमा। इसमें राग कोई नहीं है, बजनगमा में कोई राग नहीं है। इसमें हर कोई साज मिलता है, ढोल की भी और गड्ढा, थाल जी, ये है ना चिमटा कहते हैं इसको, चिमटा यही भी होता है, थाल जी, हारमोनियम, रबाब, सारंगी, साज तो हर कोई मिलता है उसमें। मगर असली साज तो इसका साज असली तो तुमक नाड़ी, गड्ढा, चिमटा, थाल जी, ये तो असली साज है। करे सालो दाज मारे हो शिकार
छकरी डांस तो यहाँ का फोक है छकरी। तो छकरी का जो रूप हमने आपको दिखाया ये ओरिजिनल है। तो किसी भी जगह के फोक से ही वहाँ का क्लासिकल भी बनता है और वहाँ का हल्का फुल्का जो भी है ओरिजिन इसका होता है फोक बेसिकली। तो ये कश्मीरी म्यूजिक का ओरिजिन छकरी है। छकरी खुशी के मौकों पर गाई जाती है, शादियों में, मेले ठेलों में, जहाँ मेला लगे वहाँ गाई जाती है। In Chakri, they sing, "Oh my love, in your memory and longing, I cried my heart out. Wake up from your sleep." सूफी डांस तो सिर्फ खास मौकों पर होता है, जो चूँकि इसमें लैंग्वेज तो ज़्यादातर ये पर्शियन है, फारसी गाने हैं इसमें, हाफिज़ शिराज़ी के हैं, शेख सादी शिराज़ी के हैं, उमर ख़याम की रुबाइयाँ हैं। तो ये ज़्यादातर पढ़े लिखे लोग ही सुनते हैं और बुज़ुर्ग लोग सुनते हैं, जो साधु संत टाइप के लोग होते हैं वो सुनते हैं। तो कभी वजद में आके खुद भी खड़े होके थोड़ा हल्का सा डांस करते हैं। In olden days, the Hafiz Naghma used to be performed. Every group had a female dancer who was called a Hafiza because she sang the couplets of Hafiz. After the coming of Islam, though, the dancing of women folk was forbidden. So men took on the role of Hafiza and danced to the music. Sometimes even the older folk dance slowly to the music. The people of Bhand normally perform all types of dances: Bolkol, Hikit, Bach Nagma and Bhand Chok. All of these except the Damali dance. दमाली डांस अलग होते हैं। जैसे हमें कहते हैं भांड कश्मीर में, तो उनको फ़कीर कहते हैं, दमाली फ़कीर। Damali dancers have an ancient history. The main difference between Bhand and Damali dancers is that whereas Bhand has a tradition of dance, music and song, Damalis have only dances. Damali is marked by playing of the dhol tashe but absence of the shehnai. इसका नाम है दम्बाली डांस। इसमें हम हुसैनी उसको कहते हैं, हुसैनी दम्बाली कहते हैं। दूसरा जो छड़ियों से करते हैं उसको रास कहते हैं। इसमें गतका शिरका आ जाता है, लालबंद आ जाता है। बाबा नसीरुद्दीन गाजी वहाँ पहले करते थे, हम आज से 450 साल पहले। हमारे जो मतलब दादा थे, उनके दादा थे, अब वो मर चुके हैं, उनके बाद हम हैं, और आज से 450 साल पहले हम करते आए हैं, और इसीलिए ये दरगाहों पर ज़्यादातर किया जाता है। Damalis too perform a variety of dances. Of these, a favorite is the Gatka. In this, warriors show off their courage and skill. In olden days, the Gatka was performed to scare away the enemy. The main dance of the ladies of Kashmir
is the roof. This common dance form is confined to womenfolk only. Women form two standing rows facing each other with light movements of the feet. One row goes on singing a particular song composed for this dance, and the other row repeats the refrain only. The songs sung in this dance form are normally adapted from folk literature. इसमें बोल इसके ज़्यादा मजहबी हैं। जब माह रमज़ान होता है, रमज़ानुल मुबारक, तो मुसलमान लोग सभी हम लोग रोज़े रखते हैं अल्लाह की हुक्म से। तो शाम को ये छोटी छोटी बच्चियाँ या औरतें ये भी दिन को रोज़ेदार होती हैं। शाम को जमा होके कोई हल्की फुल्की सी नात जो इन्होंने खुद बनाई होती है, तो माह रमज़ान की आमद की गीत, ईद के आने की खुशी वाले गीत, ये चीज़ें रूप में ज़्यादा होती हैं। Associated with the Wanwun is a dance called the Bol Kol. In a marriage, when the bridegroom is being dressed and made up, the women of the house sing these songs in praise of the new bride and bridegroom. These songs are also sung at times in praise of a special guest. बोल कोल दो लफ्ज़ हैं, बोल और कोल, यानी जो आदमी मुंह से बोले, दिल से उस पर सच्चा यकीन रखे, तो वही बोल कोल है। ये जो औरतें हैं, क्योंकि लड़की जब पैदा होती है एक जगह, तो फिर ब्याही जाती है किसी दूसरी जगह, तो ये अपने सखियों से कहती है, सखियों जो आज तक मुझसे बोला है वो याद रखना, उस पर अपने दिल से यकीन रखना। यानी बोल और कोल, दिल और ज़बान एक रखना हमेशा। मुझे अपने दिल से बुलाना नहीं, जैसे ज़बान पर मेरा नाम आप लोग याद करते हैं, वैसे दिल से भी मुझे याद करना। Ladakh is famous for its festivals. The monastic festivals provide the average Ladakhi with the spice of life. No other festival can match them in religious and entertainment value. Monastic festivals are held to commemorate the founding of a monastery, the birthday of its patron saint, or major events in the evolution of Tibetan Buddhism. Thousands of people turn out in their colorful best, making every festival a carnival of color. The Devil Dance is another popular dance form of the region. Ladakh, the roof of the world, is famous for this dance. It is often performed to relieve a man possessed by some demon or devil by Lapas, godmen, or Manipas, prayer men. The Devil Dance is part of the religion of Ladakh. To perform the Devil Dance is not the common man's job. Only lamas and magicians are allowed to perform it in the presence of the head lama. The dance is performed in the presence of some gumpa or open space nearby. दो तरह के डांस होते हैं लद्दाख में। एक तो डांस जो उनके सेलिब्रेशन का हिस्सा होता है, और दूसरे जो उनके मार्शल मूवमेंट्स के साथ जुड़े हुए हैं। मार्शल मूवमेंट्स का नोमाड जो डांसेस हैं वो उनसे जो है वो डिफरेंट होते हैं। पर यूजली जो उनके डांस जो लद्दाखी का जो एक ट्रेडिशन है, वो जो हर जगह आप हर तरफ हर रीजन में देखेंगे, उसमें उनकी बहुत ज़्यादा वेरिएशन है। It is indeed a pity that the dances, which till only yesterday were such an important part of the lives of the people of Jammu and Kashmir, are now waning in popularity. Urbanization has distanced people from their culture. The people professionally associated with these dances now find it hard to earn their livelihood, but the government has started to take concrete steps to address this issue. हमारे जम्मू कश्मीर में कोई क्लासिकल डांस तो था नहीं जिसकी आप एक स्कूलिंग
के हिसाब से उसको चला सकते हो, जिसका आपके पास एक शास्त्र हो। क्लासिकल डांस का शास्त्र है, उसका एक पर्टिकुलर थ्योरी है। अब ये सारे डांसेस जो हैं, ये एक सेलिब्रेशन का, एक कल्चर का, एक लाइफ का हिस्सा रहे हैं, और लाइफ जो है लोगों को बिलोंग करती है। हम तो अपनी ओर पे कोशिश कर रहे हैं, हम यहाँ पे फोक फेस्टिवल्स करते हैं, हम यहाँ पे स्टेट लेवल डांस फेस्टिवल करते हैं, स्टेट लेवल डांस कंपटीशन करवाते हैं, और जहाँ पे हमने स्टेट को रिप्रेजेंट करना होता है वहाँ उन लोगों को हम इंकरेज करते हैं, पैट्रनाइज करते हैं, पैसा देते हैं। लेकिन मैं समझता हूँ ये काफ़ी नहीं है। ये डांसेज जो हैं ये लोगों को बिलोंग करते हैं, और लोगों में इस तरह का कॉन्शियसनेस आना चाहिए साहब कि ये डांसेस ये तहजीब का हिस्सा हैं, ये उनको बिलोंग करते हैं। और कल मान लीजिए ये डांस ही नहीं रहेंगे, ये कल्चर ही नहीं रहेगा, ये लाइफस्टाइल नहीं रहेगा, ये म्यूज़िक नहीं रहेगा, तो उनकी अपनी पहचान जो है कहीं नहीं होगी। The efforts of the government are bearing fruit once again, and with its help, the people of Jammu and Kashmir are making all-out efforts to conserve their culture and heritage. One thing is clear: invasion of the satellite culture may have temporarily pushed the state's tradition and culture to take a back seat, but the people are determined never to lose their rich and precious heritage.